Hello students, how are you? Good morning. Today we are going to continue our exercise and we are going to discuss the question from the 4.16 to 4.20, right? Let's start with the first question, 4.16. The rate constant for a first order reaction is 16 second inverse. How much time will take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? Alright, what is given that the first of all here the rate constant is given, which is k is equal to 16 second inverse, right? And we have to find out the time, right? Time taken for what? When the initial concentration is decreased to 1/16th of the value, right? कि जो initial concentration है वो 1/16 हो जाए तब कितना टाइम लगता है वो हमें फाइंड आउट करना है. सपोज दैट द इनिशियल concentration is x, right? Then the at the time t the concentration will be x by 16, राइट क्योंकि इनिशियल से कितनी होनी चाहिए 1/16 पार्ट की होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया x by 16, राइट. नाउ वी हैविंग अ फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ पे कहीं भी बोला नहीं, सॉरी यहाँ पे बोला गया है इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर नहीं भी बोला गया होता तो यू कैन find that it's a first order reaction because the unit of k is second inverse, right? तो अगर डायरेक्टली बोला गया है सही है, नहीं तो आप k के यूनिट से भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन है. तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t इज इक्वल टू 2.303 बाई k log r naught by r, right? Now the value of k is given, so replace that value which is 60. Now we suppose that the concentration, initial concentration of reactant is x and the concentration at time t is x by 16. So this x will be cancelled out and you will get log 16. The value of log 16 is 1.2041. So if you simplify that whole term you will get 0.0462 second. सही है, क्या है सेकेंड है, उसका यूनिट है. तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो कोई रिएक्शन है उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने स्टार्टिंग की ली, उसमें से कॉन्सेंट्रेशन 1/16 होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है 0.0462 सेकेंड, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.17. During nuclear explosion, one of the product is strontium-90, which with a half-life of the 28.1 year. If 1 milligram of the strontium-90 was absorbed in a bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it not lost metabolically? सही है. क्या बोला गया है कि सपोज कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अंदर 1 मिलीग्राम जितना क्या है स्ट्रोंसियम है. मतलब कि यहाँ पे हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंसियम दी गई है विच इज 1 मिलीग्राम, राइट. द हाफ लाइफ फॉर दिस स्ट्रोंसियम 19 is also given which is 28.1 year, right? So T half is given 28.1 year, right? Now we have to calculate the concentration at the time. फर्स्ट एट द 10 ईयर, राइट, कि हमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन रहती है किसमें, जो बेबी है उसमें, किसकी, स्ट्रोंसियम 19 की, सही है 90 की. तो कब वो कैलकुलेट करनी है, तो t इक्वल टू 10 ईयर पे कैलकुलेट करनी है और दूसरा t इज इक्वल टू 60 ईयर पे हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. Now we have to calculate the amount, right, remaining concentration of strontium. For that we want a value of k, right? So first of all, from the given half life, we can calculate the rate constant. So for the first order, the T half is equal to 0.693 by k. So k equal to 0.693 by T half and value of T half is given 28.1. So you will get, if you simplify that, you will get k is equal to 2.466 into 10 to the power minus 2 year inverse, right? Now
Here the amount of strontium 90 left after 10 years, वो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी अमाउंट रह जाती है आफ्टर द 10 years, right? Means our T will be a 10 years, right? Now for the first order reaction, the equation is K is equal to 2.303 by T log R naught by RT, right? Here the value of K you already calculated, so replace that, and the time which is 10 years, so replace also the time, right? And also the R naught initial concentration of that strontium 90 is given, which is 1 milligram, so replace that 1 milligram. You have to find out that RT, right? Means at the 10 year the concentration, remaining concentration of that particular strontium, right? So you have to find out the RT, so subject that whole term and rearrange the formula. This 10 goes into a multiplication and this 2.3 goes into division, right? So if you simplify this term, you will get 0.1071, right? Now here the 1 by RT can be written as the RT having power -1, right? क्योंकि वो RT डिवीजन में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका पावर -1 हो जाएगा. Now that power or exponent goes in the multiplication of log, so you will get minus log of RT is equal to 0.1071. If we take multiply by -1 both of side, here minus will be plus and here you will get minus 0.1071, right? Now we only want the value of RT, so we have to take a antilog both of sides, so antilog and log will be cancelled out, so you will get RT, and here the term will be antilog of minus 0.1071. If you see the antilog for this term, you will get 0.7815 milligram. Okay, तो after 10 year जो स्ट्रोंसियम है उसका अमाउंट कितना होगा, 0.7815. अब आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है वो कैसे आप चेकआउट करोगे, तो आपको पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हमें हर बार क्या होगी, जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है कम ही आएगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तरह से यूज्ड होती रहेगी, सही है. तो उसी वजह से क्या होता है, उसकी अमाउंट हमारी इनिशियल से कम आनी चाहिए. नाउ फर्स्ट पार्ट इज सॉल्ट. नाउ वी हैव आल्सो calculate that the amount of strontium left after the 60 years. पहले हमने 10 ईयर के बाद फाइंड आउट किया, अब हमें कब के लिए फाइंड आउट करना है, आफ्टर द 60 ईयर. मीन्स वी ऑलरेडी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के रीड कांस्टेंट, सो रिप्लेस दैट वैल्यू. द टी विल बी 60, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1, right? And you have to calculate that RT at the 60 years, right? So you have to calculate by yourself and have to say the answer in the comment, right? Means it's your homework and you have to say the answer for this RT, right? You have to give a answer that RT. कि after 60 years जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंसियम है वो कितनी रह जाती है वो आपको मुझे बताना है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4.18. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction. हमें क्या शो करना है, तो जो टाइम टेकन है कब के लिए, अगर कोई रिएक्शन हम कैरिड आउट कर रहे हैं वो 99% कंप्लीट हो जाए तब का जो टाइम है, इट्स ट्वाइस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ 90%. सही है कि 99% के लिए जो कंप्लीशन रिएक्शन करवाने के लिए जितना टाइम चाहिए वो 90% रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए जितना टाइम चाहिए उससे क्या है, डबल है. सपोज के यहाँ पे जो 99% कंप्लीशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड है T1 और इसके लिए है T2, तो वी हैव टू प्रूव दैट T1 इज इक्वल टू T2, राइट. चलो तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज दैट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100, राइट. सो फॉर द 99 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, दैट R1 मीन्स रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, राइट. यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन विल बी 100 minus 99, so you will get 1, right. Now for this completion the time taken is T is equal to T1.
Here we have the formula, first order formula, which is T is equal to 2.303 by K log R naught by RT. Right, here T is equal to T1 and the value of K is not given, so we are not replacing that value. But we suppose that the R naught is 100 and RT, the remaining concentration, is 1. So you will get the log of, we can write the 100 as the 10 to the power 2, right? That 2 goes in the multiplication of that whole term, and log 10 equal to log 10 base 10 equal to 1. तो हमें मिल जाएगा T1 is equal to 2.303 by K into 2. It's our equation number 1, right? And now for the 90% completion of the reaction, the R2 equal to 100 minus 9, क्योंकि ये भी तो कौन सी है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. तो वो कितनी रह जाएगी, 90% तक कंप्लीट हो गई, तो बच कितनी गई, 100 minus 90, so you will get 10, right? And time taken for this 90% completion is T2. So our formula will be T2 is equal to 2.303 K log 100 by 10. That 110 will be cancelled out, so you will get log 10, and log 10 value is 1. So T2 is equal to 2.303 by K is our equation 2. Now we have to compare that T1 and T2, right? So if you divide the equation 1 by 2, you will get T1 by T2 is equal to 2.303 by K into 2 whole divided by 2.303 by K, right? That whole term will be cancelled out, right? So you will get T1 by T2 is equal to 2. So T1 is equal to 2 T2. यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया. आई बात समझ में? तो ये खास आपको याद रखना है कि अगर बोला गया है 99% कंप्लीशन, तो ये नहीं बोला गया है कि 99% आपका रिमेनिंग है. 99 तो कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा. तो जो स्टार्टिंग है, इनिशियल है, उसमें से आप जो सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग, और वो हमें फॉर्मूला में यूज करना है. तो ये मिस्टेक हो जाती है कई बार कि आप डायरेक्ट ये यूज कर लेते हो, सही है. तो आप आरटी, ये हमारा आरटी नहीं है, आरटी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. आई बात समझ में? ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4.19. A first order reaction takes 40 minutes for the 30% decomposition. Alright, calculate the T half. यहाँ पे कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. और अगर हम आफ्टर द 40 मिनट उसका ऑब्जर्वेशन करें, द डिकम्पोजिशन इज 30%, राइट. 30% डिकम्पोज हो गया है. तो उसके लिए हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है. तो गिवन डेटा इज टी इज इक्वल टू 40 मिनट. सपोज द आर नॉट इज 100. 30% डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 100 minus 30. सो यू विल गेट 70, right? And you have to find out that T half, right? For the first order reaction, the formula is K is equal to 2.303 by T log R naught by R, right? The value of T is given, which is 40 minutes. Initial concentration, we suppose that 100 and the remaining concentration is 70, right, after the decomposition of that particular substance, right? If you divide 100 by 70, you will get 1.4286. So you have to find out the log of that term, right? And log for this term is 0.1549. So you will get, if you simplify that, you will get the K is equal to 8.98 into 10 to the power minus 3 minute inverse. Now we know the formula for the half-life for the first order reaction is T half equal to 0.693 by K. We already calculate the K, so replace that value and you will get the T half is equal to 77.7 मिनट. मतलब जो भी हमें सब्सटेंस दिया गया है उसका अगर डिकम्पोजिशन करवाना है तो उसकी जो हाफ लाइफ है, वो जो हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से वो कब हाफ होगा, तो 77.7 मिनट पे वो हाफ हो जाएगा. ओके. Today's last question is exercise question number 4.20. For the decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data are given. यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो एजियो
आइसोप्रोपेन है, आपको आइसोप्रोपेन को पता है, और एजो का मतलब होता है कि उसके साथ नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करके कौन है, एक नाइट्रोजन है। तो उसका अगर डिकम्पोजिशन होता है तो वी विल गेट द हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, राइट, एट द 543 केल्विन। एंड for this experiment or for this decomposition some data are given, right? See the data. The given data is first at the 0 second the pressure of that reactant is 35 mmHg, right? After the 360 second the pressure is 54, and after the 720 the pressure is 63. Now we have to calculate the rate constant, right? Here the reactant is an azo आइसोप्रोपेन मीन्स NCH3 ट्वाइस। आपको ये तो पता है कि ये जो है आइसोप्रोपाइल है, और उसी में अगर आप क्या कर दोगे NH, एक H की जगह N लगा दोगे तो वो हो जाएगा एसो आइसोप्रोपाइल। उसका डिकम्पोजिशन होके नाइट्रोजन और हेक्सेन फॉर्म हो रहे हैं, राइट। और उसके लिए हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, और ये इतना गिवन डेटा है, राइट। फॉर दिस रिएक्शन सपोज एट द T इज इक्वल टू 0 टाइम, जो भी प्रेशर है, सही है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सिर्फ तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुए, तो प्रोडक्ट का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 0 एट द T इज इक्वल टू T टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, वो भी कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। सो वी कैन से दैट, तो उनका प्रेशर सपोज कि P जितना फॉर्म हो रहा है, सही है, कितना फॉर्म हो रहा है, P जितना। तो जो हमारा रिएक्टेंट था उसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, तो इनिशियल में से जितना यूज हो गया उतना कम हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे अगर आप ये बात देखो तो ये जो दिया गया है वो क्या है एक्चुअली, तो P नॉट है, इनिशियल है, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ रिएक्टेंट का है। लेकिन इन दोनों की बात करो तो ये 360 पे हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट भी है और साथ में प्रोडक्ट भी है, और ये जो प्रेशर है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का मिला के है। मतलब कि ये हमें दिया गया है P टोटल, ये भी दिया गया है, क्या हमें P टोटल दिया गया है। आई बात समझ में, क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट मेजर कर दिया। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, जब भी हम मेजर करेंगे तब, कि रिएक्टेंट का कौन सा प्रेशर है और प्रोडक्ट का कौन सा प्रेशर है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो टोटल प्रेशर ही मेजर करके देता है। मतलब कि हमें मिल गया P टोटल, ये जो गिवन वैल्यूज है दे आर द P टोटल फॉर द रिएक्शन, राइट, एट द टाइम 360 second, and this one is for the 720 second, right? Now from this we can say that the total pressure at time T will be P total is equal to, जो भी प्रेशर है हमारा, रिएक्टेंट हो या जो प्रोडक्ट है उसका टोटल ही होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का है P नॉट माइनस P, प्लस हो जाएगा ये और प्लस हो जाएगा ये, दिस will be cancel out, so you will get P total is equal to P नॉट प्लस P, right? Now जो हमारी फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या लिखते थे, R नॉट बाई आर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते थे। यहाँ पे क्या है, तो गैसियस फॉर्म में है तो प्रेशर के बारे में दिया गया है, तो हम R नॉट की जगह लिख सकते हैं P नॉट और बाई PT, राइट। जो रिमेनिंग होगा एट द टाइम किसका, तो हमारे रिएक्टेंट का, उसमें हमें P टोटल या प्रोडक्ट के प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसका चाहिए, तो रिएक्टेंट का ही चाहिए, सही है। मतलब हमें जो रिमेनिंग प्रेशर है रिएक्टेंट का वो फाइंड आउट करना है। सपोज कि वो कितना है, PT जितना है, तो वो कितना है हो जाएगा, तो P नॉट माइनस P जितना हो जाएगा। हमने यही तो बात की ना कि अगर एट T इक्वल टू T टाइम पे अगर हम रिएक्टेंट का प्रेशर मेजर करें तो वो इनिशियल में से जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया उतना प्रेशर उसका कम हो जाएगा। मतलब एट द T टाइम द प्रेशर ऑफ रिमेनिंग प्रेशर ऑफ दैट रिएक्टेंट विल बी P नॉट माइनस P। ना हमें P नॉट तो गिवन है बट P गिवन नहीं है, जो गिवन डेटा है उसमें P गिवन नहीं है, उसमें P टोटल गिवन है, राइट। तो यहाँ जो ये फॉर्मूला आई है उसमें से हम P को सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ P विल बी P टोटल माइनस P नॉट। सो रिप्लेस दैट वैल्यू फॉर P विच इज P नॉट P टोटल माइनस P नॉट, राइट। इफ यू over the bracket you will get P naught minus P total and that minus will be become positive, so P naught.
दैट पी नॉट एंड पी नॉट बिकम 2 पी नॉट माइनस पी टोटल। तो जो रिमेनिंग प्रेशर है वो कौन सी टर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये वाली टर्म से कि जो रिमेनिंग है वो कितना होगा, तो 2 पी नॉट माइनस पी टोटल। तो पी नॉट भी है और पी टोटल भी है, सही है। तो जो पहला गिवन डेटा है, पहला एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एट द T1 इक्वल टू 360 सेकेंड, तो पी नॉट तो सेम ही रहेगा 35 mmHg एंड PT एट द 360 सेकेंड विल बी 2 पी नॉट माइनस पी टोटल, राइट। यहाँ पे पी नॉट है 35 एंड जो पी टोटल है कब के लिए, 360 के लिए, तो वो दिया गया है 360 के लिए। जो पी नॉट है वो कितना है, 54। सो सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम दिस टर्म, you will get 16 mmHg. Now the formula is K1 is equal to 2.303 by T1 log P naught by PT, right? We having the value of T, P naught and PT. So replace that all. If you divide that term, you will get 2.1875. So you have to see the log for this term, and the log for this value is 0.3400. If you simplify that whole term, you will get the rate constant is 2.175 into 10 to the power minus 3 and time is given in seconds, so unit for the K will be a second इनवर्स, राइट। आपको समझ में आया कि ये पीटी कहाँ से फाइंड आउट किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, पीटी के लिए पहले तो इक्वेशन लिख ली। तो जब T इक्वल टू 0 टाइम मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तब जो P प्रेशर है जस्ट ड्यू टू द रिएक्टेंट है, उसमें बिल्कुल भी प्रोडक्ट है नहीं। अब अगर T इक्वल टू T टाइम की बात करें तो उसमें रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, तो प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा ही। तो उसका सपोज के प्रेशर P है N2 का, और ये जो हेक्सेन है उसका प्रेशर P है, तो उतना प्रेशर रिएक्टेंट का कम होगा क्योंकि उसका उतना डिकम्पोजिशन हो गया होगा। तो जो हमारा T इक्वल टू T टाइम है उस पे जो रिएक्टेंट है उसका प्रेशर कितना हो गया होगा, P नॉट माइनस P। तो हमें ये वैल्यू चाहिए फॉर द फॉर्मूला, राइट। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर इस टर्म के लिए हम लिख सकते हैं, इन सब प्रेशर का सम करना है। सो यू विल गेट P टोटल इक्वल टू P नॉट प्लस P। फ्रॉम दैट फॉर्मूला वी सब्जेक्ट दैट P, राइट, क्योंकि P दिया गया नहीं है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है या फिर कितना रिएक्टेंट यूज हो रहा है, सही है। तो जो रिमेनिंग प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, यहां से हमें पता चलता है रिमेनिंग प्रेशर होगा P नॉट बाई P, एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दैट P, राइट। सो यू विल गेट द रिमेनिंग प्रेशर विल बी 2 P नॉट माइनस P टोटल। अब P भी दिया गया है और पर्टिकुलर टाइम पे P टोटल भी दिया गया है, तो वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग प्रेशर। एंड जस्ट हमें यहाँ पे इनिशियल और यहाँ पे रिमेनिंग की वैल्यू रिप्लेस करनी है, सो यू विल गेट द आंसर, राइट। नाउ फॉर द सेकंड एक्सपेरिमेंट, this observation is taken at the time 7:20 second, right? At that time the P naught will be 35 mmHg and PT is equal to 2 P naught minus P total, right? और आप देख सकते हो at the time 7:20 second the P total is 63, so subtract that P total, you will get 7 mmHg, right? Now again you same formula, K2 is equal to 2.303 T2 log P naught by PT, right? तो यहाँ पे सारी वैल्यू दी गई है, you will replace, you will get the answer 2.236 into 10 to the power minus 3 second inverse। मेन थिंग क्या है, तो ये PT फाइंड आउट करना है, जो रिमेनिंग प्रेशर है वो, और वो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको समझाया है। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। इफ देयर इज एनी क्वेरी इन द एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।